Okay, friends, this is the third day of our seminar on spiritual and scientific dimensions of various rituals involved in the sanskaras. And today we have two learned speakers, Dr. Narendra Kumar and Nandu Kumarji from Canada. Our two speakers who are not able to join today due to some urgent appointments behind. So I will try to be the third speaker just to fill up the gap. So just to move further, I would like to invite Satish Bihari ji from Mauritius to introduce our first speaker, Dr. Narendra Kumar, and invite him to deliver his speech. Satish Bihari ji. Thank you, Professor G. Thank you, Professor Ashwini Rajpal Ji, all the learned scholars on the platform, and all the intellectuals and participants of this webinar for today. I feel honored to have the privilege to introduce to you today Dr. Narendra Kumar, who will be addressing to you on Nishkarma Sanskar. It is what we have to do in our daily life. Dr. Narendra Kumar ji is born on the 4th of April 1960. His place of birth is Barhini district, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh. He presently resides Pratap Bihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Dr. Narendra Kumar ji has a very elaborate qualification, very learned scholar. He is an MA in Sanskrit from Delhi University, Sahitya Acharya, SS University, Varanasi. He is also Ayurveda Sahitya Ratna, Prayagraj, PhD Diploma in Yoga, Gurukul Kangri University, Haridwar. He has a doctorate in literature, Ranchi University, Ranchi. He has a national educational certificate from UCG Siddhant Sastri, Poho Hitya Pravar, Gurukul Mahavidyalay, Jwalapur, Haridwar. Dr. Narendra Kumar ji is an ex-pradhyapak for 3 years in education, Gurukul Mahavidyalay, Jwalapur, Haridwar. He's also in the field of journalism, ex-senior sub-editor, Nandan and Hindustan, Delhi. He has a very elaborate publications, and some of them are Dharam Sutriya Acharya Samhita, Gautam Dharam Sutra, Bodhyana Dharam Sutra, Apstamba Dharam Sutra in Hindi, Srimad Bhagavad Gita in Hindi, stories based on Upanishad, Ramayana, Mahabharat, Puran, Panch Tantra, Hitopdesh, etc. He is also involved in Ayurveda home remedies, Ayurveda, the 6 parts. He's specialized in the field of Vedic and Arya Sahitya writing, editing, and many stories published
in Nandan, Amar Ujala, Rashtriya Sahara, Suman Surab, Champak, etc. Dr. Narendra Kumar ji biography is also on Yog Prabhatak Maharishi Dayanand Saraswati, Moti Hai Anmol, Subhas Chandra Bose, etc. His present work actually is freelancing, writing, editing, proofreading. I have now the pleasure and honor to invite Dr. Narendra Kumarji to address the floor on the very interesting subject for today. Thank you so much. Up to you, Dr. Narendra Kumarji. सर्वेभ्यो नमः। आदरणीय प्रोफेसर रवि प्रकाश जी एवं उपस्थित अन्य विद्वजन, मैं आज आपके समक्ष निष्क्रमण संस्कार को लेकर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद ने संस्कारों के विधि विधान को लेकर संस्कार विधि की रचना की थी। वह संस्कार विधि की भूमिका में कहते हैं, सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत 1932 कार्तिक कृष्ण पक्ष से श्रीयुत शनिवार के दिन संस्कार विधि का प्रथमारंभ किया था। महर्षि के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय संस्कारों को लेकर वेद पर आधारित ग्रंथों का प्रायः अभाव था। जो ग्रंथ थे भी उनमें अवैदिक विधि विधानों जैसे ग्रह नक्षत्र आदि पूजन, मूर्ति पूजन जैसे बाह्याडंबरों का बोलबाला था। उन्होंने इसका स्वयं भी अनुभव किया था। यज्ञ आदि में पशुओं की बलि दी जाती थी। अवैदिक व्याख्याओं के आधार पर मंत्रों का विनियोग किया जाता था। श्लोकों को आधार बनाकर, चाहे वो पुराण के हों या और किसी अन्य ग्रंथों के, उसके आधार पर संस्कार संपन्न कर दिए जाते थे। महर्षि दयानंद ने जब वैदिक यज्ञों पर प्रवचन देना प्रारंभ किया तो आम जनता को पता लगा कि यज्ञ का महत्व क्या है, संस्कार कहते किसे हैं और संध्या हवन किसे कहा जाता है। महर्षि ने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए संस्कारों को लेकर एक विस्तृत वक्तव्य दिए। जब उन्होंने देखा कि लोगों के पास वैदिक पद्धति पर आधारित कोई संस्कार की पुस्तक है ही नहीं, तो आम जनता संस्कारों को क्या समझेगी और कैसे करेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि की रचना की। उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयुक्त छोटा संस्कारों को, जो किसी समय 40 संस्कार को वाले थे, कुछ समय के पश्चात वो 26 में हो गए। लेकिन महर्षि दयानंद ने अपनी विद्वत्तापूर्ण आलोचनात्मक शक्ति से उन सारे संस्कारों को केवल छोटा संस्कारों में ही समाहित कर दिया। ये महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी विशेषता है। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि की रचना कर पूरे भारतवर्ष में एक नई क्रांति उत्पन्न कर दी, जागरूकता भर दी। उन्होंने संस्कारों के नाम पर चले आ रहे पाखंडों, कुरीतियों और नाना प्रकार की कुप्रथाओं का जमकर विरोध किया और वैदिक मान्यताओं के आधार पर उन्होंने संस्कार विधि की रचना की। प्रसंगानुसार मैं अब निष्क्रमण संस्कार की चर्चा पर आ रहा हूँ। इस संस्कार से पूर्व संपन्न होने वाले 5 संस्कार हैं। 1 गर्भाधान, 2 पुंसवन, 3 सीमंतोन्नयन, 4 जात कर्म
और 5वां है नामकरण। निष्क्रमण संस्कार की चर्चा करते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके आशय को समझ लिया जाए, तो इसका प्रयोजन और इसकी उपादेयता और उसका महत्व हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसे महर्षि दयानंद के ही शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। महर्षि लिखते हैं, निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से जहाँ का वायु स्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना होता है। महर्षि दयानंद के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि इससे पूर्व शिशु को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसका कारण यह है कि इस संस्कार के संपन्न होने से पूर्व तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण को आत्मसात करने में सक्षम नहीं होता है। उसकी कर्मेंद्रियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां इतनी प्रबल एवं पुष्ट नहीं होती कि उसे घर से बाहर घुमाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस संस्कार से पूर्व शिशु का तन अत्यंत सुकुमार तथा कोमल होता है। वह अपने को बाहरी वातावरण में असहज पाने लगता है, तालमेल नहीं बैठा पाता, इसलिए वो बच्चा कई बार रोने भी लगता है। अभी तो वो शिशु अच्छी तरह से अपने आंखें भी खोल पाने में समर्थ नहीं होता है, कान इस योग्य नहीं होते कि उसे बाहर के कोलाहलपूर्ण वातावरण में रखा जाए। आपने देखा होगा, नवजात शिशु के पास यदि शोरगुल होने लगे, आवाज होने लगे, तो वो स्वयं को असहज महसूस करता है। यदि उसके आसपास पटाखा या बम छोड़ दिया जाए तो वो कांप उठता है। ऐसे अनेक तथ्य हैं जिन्हें हम नवजात शिशु के साथ घटते हुए देखते हैं। आजकल आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ माताएं और कुछ पिता अपने सुकुमार बालक को 3 माह से पूर्व ही घर के बाहर घुमाने लग जाते हैं। इसका फल क्या होता है कि उसकी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञान इंद्रियों पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव पड़ने लगता है, जो उस समय तो हमें मालूम नहीं होता, लेकिन कालांतर में ये दुष्प्रभाव प्रकट होने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए कि इतना सुकुमार बालक क्या सूर्य के ताप को सहन कर सकेगा? क्या बाहर की चलती हुई हवाओं को वो सहन कर सकेगा? क्या बाहर की गर्मी को वो सहन कर सकेगा? क्या वो बाहर हो रही बूंदाबांदी को सहन कर सकेगा? इसका उत्तर होगा कदापि नहीं, कभी नहीं। फिर हम ऐसी नादानी क्यों करते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम बाह्याडंबर में विश्वास करने लगे हैं। अपने को प्रगतिवादी, प्रगतिशील कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर नहीं जाता। इसी का परिणाम है कि छोटे छोटे बच्चों को नाना प्रकार के रोग छोटी छोटी अवस्था में ही घेर लेते हैं। इन सब से बचने के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार से पूर्व शिशु को बाहर से निकालना अवैधिक होने के साथ साथ अवैज्ञानिक भी है और अव्यावहारिक भी है। यह संस्कार कब किया जाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं, अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करा दें। वह इसके लिए आशुलायन गृह सूत्र का प्रमाण देते हैं। चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका सूर्यम उदीक्षयति तत् चक्षुरिति। महर्षि दयानंद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए प्रमाण को वो अवश्य प्रस्तुत करते हैं। बिना प्रमाण के वो किसी बात को प्रस्तुत नहीं करते, अपने विचार प्रकट नहीं करते। तभी तो उन्होंने इसका विकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा और उसके संदर्भ में पारस का सूत्र का प्रमाण देते हैं। जननाद्य वह दोनों प्रमाणों का अर्थ देते हैं। निष्क्रमण संस्कार के बालिका दो भाग है। एक बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो। ये तिथि इसलिए रखी जाती है ताकि हमें बच्चे की जन्म तिथि याद रहे
उसका हमेशा हमें एक इतिहास हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। महर्षि दयानंद के उक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निष्क्रमण संस्कार शिशु के जन्म के अनंतर तीसरे अथवा चौथे माह में अवश्य संपन्न कर देना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि तीसरे अथवा चौथे माह तक शिशु की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इस योग्य हो जाती हैं कि वो बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बैठा सके। आज के वैद्य और चिकित्सक भी इस बात को मानने लगे हैं। वे 4 माह के शिशु को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देते। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसा ना करने पर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम आदि व्याधियां घेर लेती हैं और धीरे धीरे ये उसका एक भयानक रूप लेती चली जाती हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि बच्चे को 4 माह के पश्चात ही घर से बाहर ले जाया जाए। वैदिक संस्कारों की प्रासंगिकता जितनी प्राचीन काल में थी, आज उससे ज़्यादा है। इसलिए है क्योंकि आज का वातावरण बिल्कुल बदल चुका है, आज का परिदृश्य बदल चुका है, हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। इसलिए आज उन संस्कारों की पहले की अपेक्षा और अधिक प्रासंगिकता है और अधिक उपादेयता है। आज के वैज्ञानिक चिकित्सक यह मानने लगे हैं कि 3 या 4 माह के बाद शिशु को घुमाने से लाभ होता है। इस संस्कार के द्वारा शिशु पहली बार सूर्य का दर्शन करता है, चंद्रमा का दर्शन करता है, प्रकृति के साथ उसका प्रथम बार ये साक्षात्कार होता है और अपने घर के आसपास लगे हरे पेड़ पौधों को, वृक्षों को, लताओं को, पुष्पों को, प्रकृति के नाना प्रकार के दृश्यों को देखता है और वो टुकुर निहारता है। उससे लगता है कि मैं किस दुनिया में आ गया, कहाँ वो घर में था और आज वो बाहर है। तो इसलिए उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति और बढ़ने लगती है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु प्रकृति का साक्षात करता है। पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से निर्मित हम सबका यह शरीर प्रथम बार बाल्यावस्था में इन संस्कार से परिचय प्राप्त करता है। आप देखें, इस विहंगम दृश्य को देखकर कितनी आनंद की अनुभूति होती है, इसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जब बच्चा रोने लगता है, माताएं अपने परिजनों से कहती हैं कि वे बच्चे को बाहर घुमा लाएं। कितना मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा है इस कथन में। ऐसा करने से शिशु का मन बहल जाता है और वह बाहरी दुनिया को देख रोना बंद कर देता है। इस संस्कार के द्वारा बच्चे का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास किया जाता है। यह संस्कार बच्चे का समाज से परिचय कराता है। इससे पूर्व उस बच्चे को घर के सदस्यों के अलावा बाहर का कोई भी आदमी न तो जानता है और न ही उसका नाम उसकी पता होता है। क्योंकि बच्चे का नाम संस्कार हो चुका है, इसलिए बाहर के लोग उसे उसके नाम से संबोधित करते हैं। जब उसे कोई उसके नाम से संबोधित करता है तो वह शिशु उसकी ओर निहारता है, उसके हाव भाव को देखता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार के होने तक शिशु की समस्त इंद्रियां उसकी प्रकृति की क्षमता के अनुकूल कार्य करने लगती हैं। तभी तो वह अपना नाम लेने वाले की ओर निहारता है। जब कोई उसे अपनी दोनों भुजाएं उसकी बच्चे की ओर आगे बढ़ाता है तो बच्चा भी उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगता है। इस संस्कार के द्वारा धीरे धीरे उस बच्चे का बाह्य संसार से परिचय होने लगता है। यह संस्कार बच्चे को संस्कारित करता है, उसमें धार्मिक भावनाएं भरता है, उसके अंग प्रत्यंगों को परिपुष्ट करता है। महर्षि दयानंद कहते हैं, उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात बालक को शुद्ध जल में स्नान करा, शुद्ध वस्त्र पहनाने पश्चात बालक को यज्ञशाला में बालक की माता लेकर आए और पति के दक्षिण पार्श्व में होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती अर्थात चित्ता करके पति के हाथ में देवे। पुनः पति के पीछे घूम के बाएं ओर पश्चिमाभिमुख होकर वह खड़ी हो जाए। इसके बाद महर्षि ने 3 मंत्रों का उल्लेख किया है। पहला मंत्र है यत्ते सुषुमे निगामा
यत पृथिव्याम सीमा। मैं ये मंत्रों को बहुत संक्षिप्त में शुरू और आदि अंत का अक्षर पढ़ रहा हूँ। इन मंत्रों का उल्लेख किया है। इन मंत्रों में परमपिता परमात्मा से शिशु को दीर्घायु, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना, उसके माता पिता, उपस्थित परिजन, उपस्थित सामाजिक गण परमात्मा से करते हैं। इसके बाद परमेश्वरोपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण आदि मंत्रों का पाठ करने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रकरण की समस्त विधि करने को कहा गया है। इसके बाद 3 मंत्र और दिए गए हैं। माता पिता पुत्र को देखते हुए उसके सिर का स्पर्श करते हैं। इसके पश्चात ऋग्वेद के 2 मंत्रों का पाठ किया गया है। प्रथम मंत्र है यस्मे प्रयंधि शुक्रिन इंद्र श्रेष्ठानि। इन मंत्रों का शिशु के कान में पाठ करने का निर्देश है। ऋषि दयानंद ने देखिए कितनी मनोवैज्ञानिक था, यानी एक तरह से मंत्र को बच्चे के कान में सुनाने के लिए कहा गया है, ताकि उसके वो मंत्र, उसके भाव, जिस भाव से उसके माता पिता मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वो भाव बच्चे के हृदय में उतरे, उसके अंतःकरण में उतरे, उसके संस्कार वैसे बने। इन मंत्रों में परमात्मा से सुख, धन धान्यपूर्ण जीवन की प्रार्थना बच्चे के माता पिता के द्वारा बालक के लिए की जाती है। इस संस्कार की मुख्य क्रिया है बालक को सूर्य का दर्शन कराना। पिता बालक को उसकी गोद में दे, बालक का सिर उत्तर और पग दक्षिण दिशा में रखा जाता है। पुरुष अपनी पत्नी के सिर का स्पर्श करे। यह पत्नी को सम्मानित करने का, पत्नी को सम्मान देने का, पत्नी को प्रतिष्ठा देने का सामाजिक तौर पर एक प्रथा है, जिसे पूरा समाज देखता है। जहाँ संस्कार में जितने लोग आए हुए हैं वो देखते हैं कि पति अपने पत्नी को कितना सम्मान देता है। और इसके बाद सूर्य का दर्शन बालक को कराया जाता है। तच्चक्षुर्देव हितम मंत्र का पाठ किया जाता है। इस मंत्र में बालक के शतायु होने की कामना, प्रार्थना परमात्मा से की गई है। इसके पश्चात बालक को शुद्ध वायु में भ्रमण कराने का विधान है। पुनश्च बालक को यज्ञशाला में लाया जाता है। वहाँ उपस्थित सभी महानुभाव बालक को तुम जीवः शरदः शतम वर्धमानः का उच्चारण करते हुए आशीर्वाद से अनुग्रहित करते हैं। इस संस्कार की अंतिम मुख्य क्रिया है रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कराना। बालक को शुद्ध वस्त्र पहनाकर माता दाहिनी की ओर से आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके देती है। उत्तर दिशा धनात्मक मानी जाती है और दक्षिण सिरा ऋणात्मक मानी जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा रथ सिर से होकर के पैर की तरफ बढ़ता है, ये उसी का प्रतीक है। रक्त का संचालन सुचारू रूप से हो सके, ये उस प्रतीक को बोध कराने के लिए किया जाता है। और इसके बाद यदद चंद्रम मंत्र का पाठ करते हुए परमात्मा की स्तुति की जाती है। जल को जो माँ ने अपनी अंजलि में लिया हुआ था, वो जल को छोड़ देती है। पिता को भी यही प्रक्रिया करनी होती है। वह बालक को उत्तर में सिर और दक्षिण में पग रखकर उसे माता को सौंप देता है और यदत चंद्रमसी रुदम का पाठ करते हुए वह भी जल पृथ्वी पर छोड़ देता है। जैसा कि सर्वविदित है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सांसारिक गतिविधियां उसके उदित होने पर ही होती हैं। यह बालक ऊर्जावान बने, शक्तिमान बने, उस प्रक्रिया का एक प्रतीक है। चंद्रमा सुधा रस बरसाता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। बालक को सीख दी जाती है कि जीवन में वह ऊर्जावान बने, वह शक्तिमान बने, लेकिन वह अपने शारीरिक बल का दुरुपयोग न करे, अकारण किसी पर क्रोध न करे, अपने को संयमित रखे। इसकी सीख उसे चंद्रमा का दर्शन कराकर दी जाती है। सूर्य की किरणों से जहाँ उसके शरीर को पुष्टि मिलती है, वहीं चंद्रमा के दर्शन से
उसके शरीर को शीतलता मिलती है, उसका मस्तिष्क शीतलता पाकर शांत रहता है। यही शीतलता ही सुशी के बल को नियंत्रित कर उसे शुभ कार्यों में लगाती है। इस सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा दोनों की कितनी उपयोगिता है यह तो सर्वविदित है। इसलिए इस संस्कार में शिशु को उसके माता पिता सूर्य और चंद्रमा का दर्शन कराते हुए जलांजलि देते हैं। जल को जीवन कहा जाता है। जल शीतल होने के साथ साथ सूर्य के ताप से तप्त भी हो जाता है और या अग्नि के ताप से वो तप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं वो जल पुनः उसे अपने रूप में आ जाता है, शीतल हो जाता है। शिशु को प्रबोधित किया जाता है कि उसके हृदय में यह संस्कार निहित किया जाता है कि वह जीवन में शक्ति और शांति दोनों को धारण करे। इसे हम ब्रह्म शक्ति एवं क्षत्र शक्ति भी कह सकते हैं। ब्रह्म शक्ति है ज्ञान और क्षत्र शक्ति है बल, ऊर्जा। ब्रह्म शक्ति शांति का प्रतीक है, क्षत्र शक्ति ये ऊर्जा का प्रयोग प्रतीक है। ब्रह्म शक्ति क्षत्र शक्ति का प्रयोग समाज को संयमित करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का क्रोध उस समय शांत हो जाया करता था जब उनके पुरोहित या उनके गुरु उनके समक्ष अपना वक्तव्य देते थे। इस संस्कार में स्थाली पुलाट न्याय से आए 3 मंत्रों पर विचार करने के लिए मैं महर्षि दयानंद के भाष्य को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखें कि उन्होंने किस प्रकार इन मंत्रों का विनियोग शिशु के जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए किया है। पहला मंत्र है अस्मे प्रयंधि मघवन ऋजिष इंद्र रायो विश्व वारस्य भोरे अश्मे शतम जीवसे धा अस्मे वीरान शश्वत इंद्र शप्रिण। यह ऋग्वेद के 3 मंडल का 36वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसमें ऋषि कहते हैं, उसका भावार्थ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि उसके बच्चे के जीवन से संबंधित है। वे ही उत्तम स्वभाव वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं कि जो लक्ष्मी का विभाग करके अर्थात अन्य जनों को बांट के फिर आप भोजन करते हैं और मनुष्यों को ब्रह्मचर्य के उपदेश से 100 वर्ष की अवस्था वाले करके संपूर्ण कर्मों में उत्साहित भय रहित एवं पुरुषार्थ करते हैं। महर्षि दयानंद इस मंत्र का इस संस्कार में विनियोग कर शिशु को लक्ष्मीवान बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन वह लक्ष्मीवान कैसा हो? वह लक्ष्मीवान ऐसा हो जो दूसरों के हितों का ध्यान रखता हो, स्वयं भोजन करने से पूर्व दूसरे के भोजन का ध्यान रखता हो और उसे ब्रह्मचर्य पूर्ण 100 वर्ष की आयु जीनी है, इसलिए उसे कर्तव्य बोध किया जाता है। दूसरा मंत्र है ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं अदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। इस मंत्र का महर्षि दयानंद ने संध्या में भी विनियोग किया है। महर्षि इसका भावार्थ करते हैं, हे परमेश्वर, आपकी कृपा और आपके विज्ञान से आपकी रचना को देखते हुए आपके साथ निरोग और सावधान हुए हम लोग समस्त इंद्रियों से युक्त 100 वर्षों से अधिक जीवे। सत्य शास्त्रों और आपके गुणों को सुने, वेद आदि को पढ़ावें, सत्य का उपदेश करें, कभी किसी वस्तु के बिना पराधीन न हो। ऋषि दयानंद की व्याख्या देखिए, कह रहे हैं यदि किसी समय हमें रोटी में घी ना मिले तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको वैसे ही खा लेना चाहिए और सदैव हम स्वतंत्र रहते हुए निरंतर आनंद भोगें। यह है स्वतंत्रता का उद्घोष। ऋषि दयानंद ने कितने वर्षों पूर्व कर दिया था। अंग्रेजी साम्राज्य के समय में ही उन्होंने वेद के मंत्रों में ऐसे अनेक मंत्र आए हैं जहाँ ऋषि ने पराधीन शब्द, स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो बालक के लिए भी ये कहते हैं कि वो बालक जन्म से ही वो स्वतंत्र हो, पराधीन न हो, इंद्रियों का वो दास न हो, स्वयं जेता हो, इंद्रिय जेता हो। महर्षि दयानंद के भाव कितने आदर्श
जो हम उच्च कोटि के हैं, यह इस भाष्य से प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों का निष्क्रमण संस्कार अवश्य कराएं और शैशव अवस्था से ही उसे सुस्कारित बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महर्षि दयानंद चेयर के प्रोफेसर श्री रवि प्रकाश जी का मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। सबको नमस्ते, धन्यवाद। Thank you, Dr. Narendra ji. You gave a very beautiful explanation of Nishakramana Sanskar. Although we know this, the word Sanskar is a very scientific one, and in fact, the Sanskar shows the processing of a human being, just like it's a laboratory type of thing, and everything with regard to the human being is processed. And Nishakramana is just exposing the child to the outside world, and we see it's very much scientific thing, although it's one of the very small sanskaras. A child, when he goes outside, he may get infected, he may have so many problems. So the seers have told, our seers have told, when a child is born, he should be exposed to the outside world within third or fourth month of his birth. So it is not proper to expose the child to the outside world immediately after he is born. So since time immemorial, since the times of the Vedas, this tradition of the sanskar, Nishakramana sanskar, was formulated. And today we see when so much of pollution is there all around, and during these circumstances, this sanskar has become essential. In earlier periods, when there was no such pollution, there was the atmosphere was quite conducive to the health of human beings. Then only these things were prescribed. We can just see how much care was taken by the seer while describing all these sanskaras. And this is a sort of acclimatization. A child has to is to get himself acclimatized before exposing him to the outside world. So all sanskaras, whether it is a small one or the bigger one, they have their own value system and they have their own significance. And here Dr. Narendra Kumar, he has very beautifully explained the entire processing. He has even quoted the mantras involved in Nishakramana Sanskar. So all these sanskaras, if these sanskaras are done to every child, all these 15, 16, 12 sanskaras, when a child undergoes these sanskaras, naturally he will develop into a very good, strong human being who will be having a good intellect, who will be having a robust physical power. And we have seen the example in the history. We have known in ancient times Bhima, Arjuna, Sahadev like warriors, and even in modern time, in medieval period, we have seen the warriors like Maharana Pratap, Shivaji, all these great personalities and our seers, they are the product of this system, Vedic system, the 16 sanskaras. Although, as Dr. Narendra specified, that there are some around 40 sanskaras altogether, and then they were shortlisted into 24 sanskaras. But Swami Dayanand again shortlisted them and just summarized them into 16 sanskaras. And by that time, there was no such book available to the Hindu society where the people can follow this system of knowledge. And it was a great, we can say, contribution in that way that our value system, the Indian knowledge system, was revived in the 19th century when we were when Britishers were ruling us. So I think this seminar is going to have a good impact, and it is going to
inspire us just to do these sanskaras, revive these sanskaras, and do these sanskaras with each and every child so that he may develop into a good human being. And just like yesterday, we had a very good lecture from Dr. Dev Sharma, and he has done practicals, and he told how a designed baby, how a baby can be designed as per the desire of parents, how a baby can be born. If you want to have an intellectual baby, that is also a process is there. If you want to have a physically powerful baby, that is a process is there. If you want to have a healthy baby, happy baby, or who is not having any mental problems. So all these sanskaras, they are for developing and designing a child of your choice. So I thank Dr. Narendra ji a lot. And in the audience, if somebody want to ask any question regarding Nishakramana Sanskara, this house is open and the learned speaker is also here. And let me also tell you that our chief guest who inaugurated this function, he has also joined us today, Professor Kotalia ji, B.K. Kotalia. So I also greet and pay respect to such a great personality. Even after his busy time, he is just joining this sanskar. You can understand the importance of this topic. So if anybody wants to ask any question, he is free to ask. Bhairavi, we have three persons with their hands up. First one is Kulbhushan Arora. Yeah, Kulbhushan ji, you are welcome to ask a question. Thank you, sir. Thank you. हेलो. Yes. हाँ गुरुजी प्रणाम. प्रणाम. हाँ गुरुजी, ये बहुत अच्छा सेमिनार सुनकर बड़ा आनंद हो रहा है और वास्तविक तथ्य हैं. तो मेरे मन में एक जिज्ञासा ये जगी है कि निष्क्रमण संस्कार में जैसे भौगोलिक दृष्टि का प्रभाव पड़ सकता है या नहीं. जैसे अब 4 महीने किसी बच्चे को हुआ है और वो ठंडी प्रांत में है, उसका बाहर निकालना, और कोई गर्मी प्रांत में उसको उसी टाइम पे निकालना, ऐसा कोई ऋतु अनुसार या भौगोलिक दृष्टि अनुसार भी कोई महीनों में नीचे ऊपर प्रभाव पड़ता है, या जो 3 या 4 महीने का समय दिया गया है वही पूरा भारतवर्ष में लागू होगा? ये एक जिज्ञासा था. जी गुरु जी, मतलब निष्क्रमण का समय संपूर्ण भारत में समान टाइम का, ये प्रश्न. नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसमें भाष्य दयानंद ने संस्कार विधि के प्रारंभ में ही ये स्पष्ट कर दिया है कि यथा योग, जैसा जैसा वहां का हो उसी के अनुकूल जो है ये संस्कार किए जाने चाहिए. एक्चुअली क्या है कि 3-4 जो महीने का समय है, ये सभी स्थानों के लिए ही है. और इस ड्यूरेशन में जो बच्चा है ना, वो एक्लेमेटाइज होता है अपने आप को, और बाहर निकलने से उसको इन्फेक्शन, दूसरी प्रॉब्लम्स न हो, इसलिए इतना समय दिया गया है. और उससे भी पहले उसको एक्सपोज किया जाता है यज्ञ के साथ. हम जानते हैं जो यज्ञ है, जो अग्निहोत्र है, वो भी एक प्यूरिफाइंग सिस्टम है जो आपके वातावरण को पवित्र करता है. तो जब बच्चा बाहर निकलता है 3-4 महीने के बाद, तो वो इतना बाह्य वातावरण से या पोल्यूशन से या सब चीजों से इतना प्रभावित नहीं होता है. उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो शरीर है, वो ठीक अवस्था में रहता है. यही इसके पीछे उद्देश्य है, और ये सभी जगह इसको लागू किया जा सकता है. ऐसा कोई वर्णन हम नहीं देखते कि पर्टिकुलर स्थान के लिए या पर्टिकुलर ऋतु में या पर्टिकुलर प्लेस में या स्थान काल में कोई अलग अलग नॉर्म नहीं है. जनरली एक ही नॉर्म है 3 से 4 महीने का इसके लिए. अच्छा, बहुत बहुत अच्छा गुरु जी. ये कार्यक्रम इतना अच्छा चल रहा है कि जो कल वाली एक बात थी ना सर, सरकार के प्रति, मुझे लगता है कि वो डॉक्टरों को ये चीज जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी चीजें हैं और पता नहीं सरकार से डरने की कोई बात मुझे तो नहीं लग रही सर. कल वाली बात बड़ी गजब लगी थी, कल पूरा ही सुना सर मैंने. तो जो भी गर्भाधान पुंसवन वाली बात है वो जरूर हमें, क्योंकि हमें ही करना है. बहुत अच्छी बात है सर, प्रणाम. नहीं, ठीक है जी.
So any मैं बंद कर- Yeah, we also have Vishnu Ramsarupji from Trinidad. Vishnuji, yes, you may ask question. Namaste, Dr. G. Namaste. In places like Trinidad, where I live, the majority, or let's say 99.99% of childbirth is institutionalized, meaning that they are born at nursing home or hospitals, Yeah. etc. Yeah. How, and therefore the child is now 2 days old, 3 days old, and they are transported from the hospital to their homes. Yeah. There a correlation between that transportation and this sanskar when the child is now introduced to the atmosphere. Because remember, they were already previously to 2 or 3 days old, they were introduced unofficially. Yeah. No, but in that case, we see that when a child is brought to home, he is well protected. So that makes no difference, but you cannot expose him frequently to the outside world, to the external atmosphere. That's the question. If a child is born in a hospital and is brought to house, so that a protection is there, you have protected him. But when this Nishakramana Sanskar means the frequent exposure, if you want to do, then that should be done after 3 or 4 months. So that has no problem. You can do that.